हेलो एवरीवन, आज हम अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से। तो फर्स्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। The term bookkeeping is combination of two words, book and keeping. Here the word book means not any book, it is book of accounts, and keeping means recording all business transactions of money value. It means business transactions of monetary value. First, we have to recognize what is business transaction. Suppose we take an example of a small fortune shop. तो अगर आप अपने मोहल्ले में भी निकलेंगे तो बहुत सारे फॉर्चून शॉप होंगे, किराने की दुकान होंगे। तो वहाँ पर लोग आते हैं, तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, हाय हेलो भी करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं। कुछ लोग अपने घर की सारी बातों को डिस्क्लोज करते हैं और लोग आते हैं तो खरीदते भी हैं, कभी कभी सामान नहीं भी खरीदते हैं। तो क्या सारे जितने भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नो। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड? ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी will be recorded in the books of accounts. Now, accounting. Accounting is identifying, classifying, summarizing, analyzing, and communicating business transactions. And what is accountancy? Accountancy is a whole body of accounting principles which are generally accepted. We hear the term GAAP, GAAP, generally accepted accounting principles. ये वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेप्टेंस है। अकाउंटिंग वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि एक्सेप्टेड हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनके द्वारा ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जितने भी बिजनेस से रिलेटेड
बुक्स होते हैं उन बुक्स को बनाने में। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि बुक कीपिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। वाई वी नीड बुक कीपिंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन की मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, वही किराना स्टोर वाली एग्ज़ाम्पल लूँ कि वहाँ सुबह से लेकर रात तक कितने ही लोग आते हैं, बहुत तरह के सप्लायर्स आते हैं जो कि बहुत सारी कमोडिटीज़ का सप्लाई करते हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कि स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक सामान को परचेज करते हैं। कुछ लोग परचेज करते हैं क्रेडिट पर और कुछ कैश में। तो वहाँ दो तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस बेसिकली होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। तो ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेट वाइज याद करना और मॉनेटरी वैल्यू के साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो वी नीड बुक ऑफ अकाउंटिंग। Now, the father of accounting is Lucas Pacioli. Lucas Pacioli is the father of modern accountancy. First time he recognized that accounting is both science and arts. Why science? Because various accounting principles are adopted worldwide to draw books of accounts, and arts because different analytical methods that are best suited to the certain business organization are adopted by the accountants. Now the other portion is accounting cycle. It is basically process. The first step is identifying business transactions. Next is journal entry. Then opening ledger accounts. Thereafter trial balance. Then profit and loss accounts and balance sheet. Then analyzing result. Thereafter
communicating the same. This is the accounting cycle. First, we have to identify business transactions. All transactions that involve money, exchange of money, are business transactions. Journal entry, it is done in chronological order. It means date wise. Ledger, opening all head of accounts, ledger. Then trial balance, it is prepared after balancing all the ledgers. The debit total and credit total must be equal. Profit and loss account, it is prepared to know about financial performance, to ascertain how much the profit have earned by the business or how much lost have incurred by the business, and balance it for ascertaining financial health. It means for knowing what is the state of assets and liabilities in the business. Analyzing the result. After preparing PL and balance sheet, this step comes in. Then thereafter, communicating the result to different users. Now I will cover the user. Who are the users of accounting information? Broadly, there are two types of users: internal users and external users. In internal, owners or proprietors are the internal users. Managers or directors of the company is the internal user, and employee. External users are shareholders or investors, next creditors, next bank and financial institutions, next government, competitors, political parties, society, humora, media, researchers, etc. तो इन सभी इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल रिजल्ट्स
की आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि समझ सकें कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये बिजनेस फर्दर हमें चलाना है या दूसरे बिजनेस में स्विच करना है। मैनेजर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट डिसीजंस लेते हैं। एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मेक कर रही है कंपनी, तो इनके सैलरी में हाइक हो, ये भी कंसर्न रहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, शेयर होल्डर्स, आइदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, ये इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन शेयर होल्डर फाइनेंशियल रिजल्ट के एनालिसिस के बाद लेते हैं। क्रेडिटर्स और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करने के बाद, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें लेंड करना है। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ बनाती हैं कॉरपोरेट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। कॉम्पिटिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके देखते हैं कि अगर कोई कॉरपोरेट अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसने अपने कॉस्ट को कहाँ कहाँ कर्टेल किया और उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सारे डिसीजंस लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई है जब से इंडिया में CSR आया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि कॉरपोरेट्स या बिजनेस इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है। सोसाइटी और बिजनेस दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर सोसाइटी नहीं होगा तो बिजनेस की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं, और बिजनेस होता है तो ही सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है और एज ऑफ लाइफ बना रहता है। दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों इफ़ेक्टेड होता है एक दूसरे से। और आजकल जो इतने सारे मीडिया, इंटरनेट, अवेयरनेस वगैरह बढ़ गए हैं, तो सोसाइटी के डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं कि सर्टेन कॉरपोरेट या कंपनी या ग्रुप ऑफ ट्रेड और ट्रेड यूनियंस कैसा काम कर रहे हैं, वो उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको परफॉर्म करना चाहिए या अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए। ये सोसाइटी आजकल ऑब्जर्व करने लगा है और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और बहुत सारी ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि अच्छा वेलबींग में काम कर रही हैं, तो उनका बिजनेस फ्लरिश भी हो रहा है। मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, जो कि बतलाता है कि बिजनेस किस तरह से GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बिजनेस को किस तरह से, ये सजेशंस भी देते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए। रिसर्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चर्स होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं कि कौन से पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ। ये सारा फिनेंशियल जो रिजल्ट्स होते हैं उनके स्टडी के बाद ही किया जाता है। और नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियंस भी करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस मेक करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। नाउ
अब हम लेसन के एंड में देखेंगे कि हमने आज की स्टडी से क्या क्या सीखा। आज की स्टडी से हमने सीखा व्हाट इज़ बुक कीपिंग, and accounting. Second, accounting is both art and science. Third, uses of accounting information. Fourth, accounting cycle. In addition, I will also discuss branches of accounts. Branches of accounts. There are basically 3 branches of accounts: financial accounts, cost accounts, management accounts. Financial accounts is prepared to know about financial position and financial health of a business concern. Cost account is prepared to ascertain different costs such as material cost, labor cost, overhead. Management. In management accounts we basically study ratio analysis, funds flow statement, cash flow statement, and few other such statements to formulate managerial decisions. Thus, in all, we have studied 3 points. The 5th is branches of accounting. That's all for today. इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी अकाउंटिंग टर्म्स। तब तक कीप लर्निंग और शेयर करें ये वीडियो और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो अपकमिंग वीडियो हो वो आप तक मिल सके। टिल देन, बाय बाय।